بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نہار منہ کنگا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو، اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور گری کھانا شروع کریں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ گرم چیزیں دل کو کمزور کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں زور لگا کر پخانہ کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہاتھوں کی سیاہ جلد پڑ جائے تو لیموں کا رس لگائیں۔ اگر سالن بد ذائقہ ہو جائے تو سالن کو گرم مسالوں اور ہری مرچ کو تڑکا لگا دیں۔ سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ روغن زیتون کھانے سے
ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज से शिफा हासिल होती है और चेहरे का रूखापन, दाने और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगाया करो। इससे ज़िंदगी भर बवासीर का मसला नहीं होता। नाज़रीन, दमा की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। जोड़ों के दर्द और तकलीफ़ से निजात के लिए मछली खाएं। अगर आपका पेट खराब हो तो केला खाएं। तहकीक के मुताबिक जो औरतें कम टेंशन लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पीने से ज़िंदगी भर मैदे में गंदगी जमा नहीं होती। पेशाब करते वक्त नीम गर्म पानी से धो लिया करो। ज़िंदगी में कभी भी कब्ज़ और बवासीर की बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा सोचने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर चेहरा मोटा हो तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। करेले का पानी पीने से चेहरे पर धब्बे और दाने कभी नहीं आएंगे। चेहरा साफ और शफाफ नज़र आएगा। नाज़रीन, नाश्ते से कबल वर्जिश करने से ज़्यादा कैलोरीज जलती है। क्या आप जानते हैं कि खांसी के दौरान मुंह से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफ़र करते हैं। जिस घर में लीमू का पौधा लगा हो वहाँ मच्छर नहीं आते। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। रोज़ाना 8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। गर्म पानी में बर्तन धोने से कांच के जुड़े हुए बर्तन खुल जाते हैं। नाज़रीन, लहसुन खाने से बंद हैज़ जारी हो जाता है। सब्ज़ टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। सब्ज़ इलायची खाने से सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। हिचकी जान न छोड़ रही हो तो गन्ने का रस पी लो। मैदे में सोजिश का मसला हो और हमल ना ठहरता हो तो निहार मुँह अनार खाने से मैदे की सोजिश ख़त्म हो जाती है और हमल भी जल्दी ठहर जाता है। सुबह के वक़्त अदरक के पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से भरा हुआ पेट कम हो जाता है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी के इस्तेमाल से मोटापा बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। अंगूर खाने से बलगम जल्दी ख़त्म हो जाती है। प्याज का रस खारिश वाली जगह पर मलने से खारिश गायब हो जाएगी। खीरे के अंदर वाला गूदा शहद में मिलाकर लगाने से पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ और छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर बाल छोटे हों तो एलोवेरा का रस पानी में डालकर लगाएं। बंद गोभी का सालन खाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। बादाम का तेल बालों पर लगाने से बाल नरम मुलायम रहते हैं। गुड़ गर्म करके नाफ में मसलने से पेट दर्द ख़त्म हो जाता है। पिस्ता खाने से कब्ज़ खुल जाती है। शहद सबसे पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा। काले अंगूरों का 1 कप जूस रोज़ाना शाम 4 बजे खाली मैदा पीने से ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज से छुटकारा हासिल होता है। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर इंसान 1 पाव अंगूर सुबह शाम खाएं। कतरा कतरा पेशाब आने की सूरत में 1 पाव अंगूर रोज़ाना खाना मुफीद है। कद में इजाफे के लिए नमाज फजर के बाद 1 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें।
कम से कम 120 दिन ये अमल करना है। नाश्ता ना करने वालों में आधे सर का दर्द बहुत आम है, जो कि शुगर लेवल कम होने की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। जिन लोगों का मैदा खराब रहता है उनके लिए अंगूर का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अंगूर दिल, जिगर, दिमाग और गुर्दों को ताकत देता है। अगर सूखी खांसी की शिकायत हो तो दूध में सवैयाँ पकाकर इनका दूध पी लें, खांसी ठीक हो जाएगी। जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती हैं उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। सोते वक्त बत्ती को बंद करने से जिस्म और दिमाग महफूज रहते हैं। रोज़ाना नहान मुँह 3 ग्राम खसकाश खाएं, खांसी दूर हो जाएगी। तरबूज खाने के बाद पानी पीने से पेट फूल जाता है, निज़ामे हाजमा सुस्त हो जाता है। पुदीने के पत्ते पानी में उबालकर इसको रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। जो औरतें ज़्यादा वज़न उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर ढालने से प्याज जल्दी गल कर मसाले में हल हो जाता है। अदरक पेट के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। पहाड़ी नमक का पेस्ट बनाकर खाने से पहले खाएं, खाना हजम करने में मदद देता है। खाने में ज़ीरा, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल खाने को ज़ोदे हजम बनाता है। जब जोड़ों, हड्डियों वगैरह में दर्द रहने लगे तो हमेशा हड्डी वाला गोश्त चपाती के साथ खाओ और जैतून के तेल पर 41 बार सूरा फातिहा और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी दम करके अपनी हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों पर धीमे हाथ से मालिश करें। और जब भी दवा खाएं इस पर कम से कम 3 बार सूरा फातिहा शरीफ पढ़कर खाएं। इंशाअल्लाह फ़ाका होगा। नाज़रीन, लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो इनकी रंगत खुशनुमा रहती है। रात के खाने के बाद वॉक किया करें, सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरें। अदरक और दारचीनी का कहवा बनाकर पिएं। भिंडी खाने से बदन में खून की गर्दिश तेज़ होती है। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल खाने के साथ करें। छातियाँ बड़ी करनी हैं तो निहार मुँह शलजम खाओ। अदरक का पानी निकाल कर हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। टांग पर टांग रख कर बैठने से बेनाई कमज़ोर हो जाती है। कमर को झुकाकर बैठने से दिमाग कमज़ोर होता है। आँखों पर सूजन आ जाए तो आधे सर का दर्द होने वाला है। जमाई लेते वक्त छाती में दर्द हो तो दमा होने की अलामत है। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। नाखून पीले होना शुरू हो जाएं तो यरकान होने वाला है। पेट के दाएं जानिब सूजन आ जाए तो समझ जाओ पेशाब में रुकावट आने वाली है। सर पर तेल डालने से दिमाग को ताकत मिलती है। खजूर खाने से नफ्स को ताकत मिलती है। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। प्याज, नमक, सिरका एक साथ खाने से भूख बढ़ती है। नहाने से पहले दाढ़ी को अलग से धोया करो। दाढ़ी के बाल नरम हो जाएंगे और सख्ती दूर हो जाएगी। कमर में दर्द रहता है तो सोने से पहले उल्टा लेट जाया करो। बगलों में अगर खारिश हो तो बगलों में खारिश हरगिज़ मत करो, इससे लाइलाज बीमारी लगने का खदशा है।
ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کریں تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے۔ دودھ میں اسبہ گول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ سوتے وقت رات کو ہریڑ کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔